Hello students, welcome to the class. So today we are going to study the chemical properties of the group 1 elements and the group 2 elements. Okay. So what are the chemical properties? The number 1 is reaction with water. Means you have to react the metal with the water, and we can see that what kind of the product will be formed by these reactions. So what will happen first? When metal may be the alkali or alkaline earth metal, so metal react with the water. Okay, so it will form the hydroxide, metal hydroxide, and the hydrogen gas will be released and the energy will be released. So when we can take the examples one by one. When the lithium react with the water molecule, it will form the, like MOH, it will form LiOH, means lithium hydroxide, and H2, and the energy will be released. Similarly, Na react with H2O to form sodium hydroxide and H2. So we can say they form the metal hydroxide. What? Metal hydroxide with water and H2 gas will be released. So down the group, when we move from top to bottom, the down the group, the reactivity increases to react with the water. So we can say cesium is the most reactive. Okay. Next is reaction with air or oxygen. So we know that when the metal react with the oxygen, they will form the M2O, है ना? M2O. It means because the alkali metals and alkali earth metals has valency +1, oxygen has -2, so that's why we can say that they will form the M2O. That is called, it is metal oxides. Okay, metal oxides. And oxides are of three types they can form. First is oxide, general monoxide. Second is the superoxide, and the third one is peroxide. So we can check that who can form the oxide, who can form the super and the peroxide. So first the example is lithium O2. Okay, so we are studying about the chemical properties of group 1 elements. Okay, after this we will go for the chemical properties of group 2 elements. So firstly हम group 1 element को discuss कर रहे हैं. Li react with O2, they will form the Li2O. Okay, Na react with O2, they will form Na2O2. K plus O2, KO2. So we can check here the lithium oxide which has Li has +1 charge, means it has total +2 charge, it has -2. So यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या चार्ज हो गया बेटा? -2 चार्ज हो गया. Okay, in the Na2O2 there is +2, and that is there are two oxygens, so it will be O2 -2, है ना? It is only one O, it is 2O. और यहाँ पर K plus O2 में K is always +1, so it will be O2 -1. So these three are different oxides. It is the monoxide O-2, it is the peroxide, and it is the superoxide. Okay, तो potassium can form the superoxides. उसके पीछे भी रीज़न है, मैं समझाऊंगा आपको. So it is the MOO-M bond, यहाँ पर MO-M bond बना है. It is the superoxide, it is the peroxide, and it is the oxide. So lithium is the only element in this group who can form the monoxide. Okay, otherwise दूसरे क्या बनाएंगे? Peroxide and the superoxide. Li form oxide, Na form peroxide, and Ka form the superoxide. Li plus O2 oxide बनेगा, K plus O2 सॉरी सुपरऑक्साइड बनेगा, और Na plus Na2O2 peroxide बनेगा. ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि जो O2 माइनस है सिमिलर साइज है लिथियम से, सो स्मॉल कैटायन विल बी स्टेबलाइज बाय द स्मॉल एनायन. ओके, सपोज ये एल आई ने इससे रिएक्शन किया तो ये स्टेबलाइज नहीं होगा, है ना? ये स्टेबल नहीं रहेगा. कंपाउंड कौन सा स्टेबल रहेगा? एल आई और O-2 का. सो दैट मीन्स ड्यू टू सिमिलर साइज द स्मॉल कैटायन विल बी स्टेबलाइज बाय द स्मॉल एनायन. सो दैट्स वाई एल आई एंड O, Li2O is stable. Again, NaNO2 minus 2, the peroxide has similar size, so they can form the peroxide Na2O2. And same potassium, rubidium, cesium and O2 minus 1 has similar size increase होती जा रही है, आप देख सकते हो. So they will stabilize with each other. The only lithium forms oxides like monoxides. Is that clear? So it is very easy that lithium can form the monoxides. Number 3 is reaction with nitrogen. Nitrogen is N. Okay, so metal plus nitrogen क्या बनाएंगे? नाइट्राइड बनाएंगे. And this nitride is type of this M, M और N means M3N. क्या बनाएंगे? M3N. We know that the metal of group 1 and group 2 has 1 valency and nitrogen has 3 valency. तो generally क्या बनेगा? M और N. So that's why Mn, तो ये बन जाएगा M3N, है ना? ठीक है, M1 and 3. So now the example is Li plus N2
तो इट विल फॉर्म 6 Li लिया हमने N2 3, एक N 3 Li से रिएक्शन करता है, सो दैट्स वाई 6 Li प्लस N2, तो 2 Li 3N, इट इज़ कॉल्ड ओनली Li फॉर्म नाइट्राइड। इसमें से सिर्फ Li जो है वही नाइट्राइड्स बनाएगा, दूसरे नहीं बनाएंगे। ओके, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन के साथ क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड, बिकॉज मेटल और हाइड्रोजन बोथ हैज वन वन वैलेंसी, सो दे विल फॉर्म दी MH, है ना। सो Li प्लस H2 LiH बन जाएगा। हाइड्राइड्स ऑफ Li इज मोस्ट स्टेबल इन द ग्रुप, उसके पीछे रीजन है, व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, Li हैज लेस रिएक्टिविटी इन ग्रुप, सो इट्स जो भी इसका कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल रह जाएगा। ठीक है, तो Li हैज द लीस्ट रिएक्टिविटी, सो दैट्स वाई इट इज मोस्ट स्टेबल। लिथियम हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना होता है, 1073 केल्विन। अदर अल्काली मेटल हाइड्राइड्स का 673 केल्विन, लेस होता है, इसका मतलब ये काफ़ी स्टेबल है, तो हाई टेम्परेचर पे जाकर के मेल्ट होता है। लिथियम हाइड्राइड इज द स्टेबलेस्ट ऑफ द हाइड्राइड, मीन सबसे ज़्यादा स्टेबल हाइड्राइड है ये। रिएक्शन ऑफ हेलोजन, रिएक्शन विथ हेलोजन, तो क्या बनेगा, हैलाइड बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ क्या बन रहा था, हाइड्राइड, तो हेलोजन के साथ क्या बनेगा बेटा, हैलाइड। ओके, मेटल हैलाइड। सो M plus X2 it will be MX, like Li plus X2 2LiX, हाइड्राइड ऑफ Li इज द मोस्ट रिएक्टिव, यहाँ पर हाइड्राइड नहीं होगा, यहाँ पर हैलाइड होगा। ओके, ये आपको चेक कर लेना, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देना, हैलाइड लिखना है हमको, बिकॉज वी आर स्टडिंग द हैलाइड टॉपिक। द हैलाइड ऑफ लिथियम लाइक LiX इज मोस्ट रिएक्टिव इन ग्रुप। ठीक है, LiH तो मोस्ट स्टेबल था, बट LiX इज द मोस्ट रिएक्टिव इन ग्रुप इन टर्म्स ऑफ X, Li इज द मोस्ट रिएक्टिव। सिर्फ X के टर्म में Li बहुत रिएक्टिव होता है, उसके पीछे भी रीजन हम देखते हैं, रीजन है उसका साइज, है ना, सिमिलर साइज। तो Li इज मोस्ट रिएक्टिव, देन Na, देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ऑर्डर रहेगा इन टर्म्स ऑफ X। और X कैसे होते हैं, तो FCl Bri, तो F की रिएक्टिविटी हाईएस्ट है, देन Cl, देन Bri, उसके पीछे रीजन है इनका सिमिलर साइज होना, जिसका साइज दूसरे से मैच करेगा उसके साथ वो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। तो Li has the smallest in size in group, so in terms of halogen it form halide easily due to small size, होल्डिंग कैपेसिटी, इसके पीछे रीजन देखो आप, छोटा छोटे को अच्छे से पकड़ के रखेगा, छोटे बड़े को पकड़ के नहीं रख सकते ना, और बड़ा बड़े को पकड़ के रखेगा, तो सिंपल सी चीज़ है, होल्डिंग कैपेसिटी पे सब डिपेंड कर रहा है ये। सो व्हेन ड्यू टू सिमिलर साइज Li and X, द होल्डिंग कैपेसिटी इज़ वेरी गुड, सो स्मॉलर साइज कंबाइनिंग इज गुड। CS और X का आप बनाओगे सपोज, देखो X की साइज सबकी छोटी होती है, सिंपल सी बात है। अब मैं इसको Li से रिएक्शन कर रहा हूँ, Na से कर रहा हूँ, देन रूबिडियम से कर रहा हूँ, सीजियम से कर रहा हूँ, फ्रेंशियम से कर रहा हूँ, तो इनका साइज तो बिग साइज है ना, तो बिग साइज स्मॉल साइज, नॉट गुड कॉम्बिनेशन, बट स्मॉल साइज इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो दैट्स वाई डिसिमिलर साइज है, यहाँ पर सिमिलर साइज है, कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि LiX क्यों इसके साथ में जो होता है, LiX जो है वो क्यों बनता है फास्टली, उसके पीछे रीजन है सिमिलर साइज। सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया मीन्स लिक्विड अमोनिया NH3, ठीक है ना। सो all the alkali metals dissolve in liquid ammonia giving deep blue solution, so whenever the alkali metals dissolve in liquid ammonia, कौन सा कलर देंगे, वो ब्लू कलर देंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, so they gives deep blue solution when dilute due to the presence of, अच्छा जब इसको dilute करते हो तो blue solution मिलेगा। so due to the presence of ammoniated यानी कि solvated electrons, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ammoniated electron in the solution। आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका मेटल है ये रिएक्शन कर रहा है अमोनिया से, X प्लस वाई, ठीक है, नंबर है M, तो ये बनाएगा M प्लस और NH3X, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कौन से, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेंगे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के जाएंगे, एक्साइटेड होकर के हायर स्टेट में जाएंगे, देन फिर से आएंगे, देन कलर शो करेंगे। तो ये ऑलरेडी हमने एक्सपेक्ट्रम चैप्टर टॉपिक में अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो दीज इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स occurs in the red region of the spectrum, this is solution appears blue color। ठीक है, रेड का एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो उसका ऑपोजिट ब्लू कलर शो करेगा। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ एल्काइली मेटल्स लाइक LiNa इन लिक्विड अमोनिया क्या करते हैं, फर्स्ट है कंडक्टिंग, कंडक्टिंग क्यों होंगे, बिकॉज इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो कंडक्टिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मेनली। However, on heating, the conductivity increases further on raising the temperature of the solution. When you increase the temperature, conductivity also increases. Conductivity decreases like those of metals. Okay. नेक्स्ट है हमारा स्ट्रांगली रिड्यूसिंग,
So due to presence of ammonium electron and are widely used as reducing agent in organic chemistry under the name of Birch reduction. तो हमारा जो चैप्टर आएगा 12th चैप्टर, उसके हम पढ़ेंगे बर्च रिडक्शन क्या होता है ना, प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन बनाना हम सीखेंगे, तो उसमें हमको इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्काइली मेटल, जो भी एल्काइली मेटल्स के कंपाउंड्स हैं उनकी क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट थिंग, इसके जो भी ऑक्साइड्स हैं और हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन प्योर कंपाउंड लाइक M2O, M2O2 and MO2 है ना, peroxide, superoxide and the oxide may be prepared diamagnetic मतलब they do not show the magnetic property and colorless when pure, कलरलेस होते हैं और डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में। ऑल द कॉमन कंपाउंड्स ऑफ द alkali metals are generally ionic in nature. These oxides are easily hydrolyzed by water to form the hydroxides according to, कैसे समझेंगे, देखो ये M2O बना लिया, इसका H2O से रिएक्शन किया तो ये बहुत जल्दी क्या बना लेगा, बेसिक इन नेचर शो कर देगा, मतलब नेचुरली OH को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। M2O2 है, ये भी जनरली OH को रिलीज कर रहा है, प्लस H2O2 2M प्लस निकल रहा है आयनिक फॉर्म में ना, इसलिए बोल रहे हैं आयनिक इन नेचर। MO2 H2O तो 2M प्लस OH माइनस और H2O2 O2, तो ये बहुत जल्दी OH रिलीज कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है। सुपर ऑक्साइड जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, पेरामैग्नेटिक इन नेचर, पेरामैग्नेटिक दे शो दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसके पीछे रीजन क्या है, देखो O2 माइनस वन है, आप चेक करोगे O2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 18 है ना, सॉरी 16 है ना, O2 के पास क्या रहेंगे 16 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस वन है मीन्स एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 17, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये क्या रहेगा, फ्री रहेगा, और जब कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑर्बिटल दे शो द मैग्नेटिक नेचर, सो दैट्स वाई, और कलर भी शो करेगा। तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक नेचर, इसके पीछे फ्री इलेक्ट्रॉन रीजन है। द ऑक्साइड्स एंड द परऑक्साइड्स कलरलेस व्हेन प्योर बट सुपर ऑक्साइड्स आर येलो इन कलर, उसके पीछे भी रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एग्जाम्पल KO2 इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन π2p π*2p मॉलिकुलर ऑर्बिटल MOT है ना, तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन अनपेड प्रेजेंट होता है, अनपेड प्रेजेंट होता है मतलब फ्री है, फ्री होकर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा फिर से आएगा, दैट मीन्स ये कलर शो करेगा। और ये जो आपका π*2p क्या है या MOT क्या है, इसको हम 4th चैप्टर में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ओके। तो आगे आपको समझ में आ जाएगा, बट जनरली अभी यही समझना है कि इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द एल्काइली मेटल्स द एल्काइली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बेसिस, जितने भी, सपोज आप ले लो NaOH का एग्जांपल ले लो, ये एल्काइली मेटल का बेस है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। KOH है, एल्काइली मेटल का बेस है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसी को मैं कंपेयर कर लूँ सपोज MgOH से, तो इट इज़ द बेस ऑफ एल्काइली अर्थ मेटल है ना, एल्काइली अर्थ मेटल, तो ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक बेस में आता है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन से होंगे, द बेसिस या द एल्काइली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस ऑफ ऑल बेसिस एंड डिजोल्व फ्रीली इन वाटर with evolution of much heat account to interns the hydration like NaOH and KOH are the example, ठीक है। अब हेलाइड्स की बात करते हैं, हेलाइड्स क्या बनेंगे, MX बनेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमको, तो एल्काइली मेटल हेलाइड्स लाइक MX X इजिकल टू FCl Br और I all are high melting colorless crystalline solid, ऑल दीज हेलाइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में डिजोल्व होते हैं, ठीक है। चेक कर लो NaCl वाटर में डिजोल्व होता है कि नहीं होता है, ऑब्वियसली होता है, ठीक है। और क्रिस्टलाइन होता है NaCl, कोई भी एग्जांपल लेके समझोगे बेटा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। आर हाई मेल्टिंग कलरलेस और क्रिस्टलाइन, तो दोनों तीनों चीज़ें आप किस पे समझ सकते हो, NaCl के छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना, दैट्स वाई क्रिस्टलाइन है, सॉल्युबल इन वाटर, द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, मीन्स सपोज आपके पास NaF है, NaCl है, NaBr है और NaI, या Na फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एल्काली मेटल में Li भी हो सकता है, Na भी हो सकता है, इट में भी दी पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ठीक है। तो सबसे जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो किसका रहेगा, F का रहेगा, देन Cl, देन Br, देन I, तो इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूँ, इसको 2 दे रहा हूँ, दैट इज 3, दैट इज 4, इज इट क्लियर। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, और MCQs भी अच्छे बन सकते हैं, और 1 लाइन क्वेश्चन जो होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और यही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, ये सपोज आपका कोई लैटिस है, लैटिस मतलब जो क्रिस्टल है, लैटिस है सपोज किसी भी एटम का, और उसके अंदर ये उसके पार्टिकल्स अटैच्ड हैं, सपोज ये अटैच्ड हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक आपके एक पार्टिकल या एटम को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। इट इज़ हाई, वेरी हाई, बिकॉज Li और F के साइज देखो आप ऑलमोस्ट सिमिलर, सो बॉन्डिंग एसोसिएशन इज़ वेरी गुड, सो दैट्स वाई वहाँ से आपको Li या F को रिमूव करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी।
So Li और F, small small, high reactive, so tightly bonded, तो जब आप H2 मिलाओगे तो do not decompose easily due to high lattice enthalpy, इसलिए वो easily dissolve नहीं होगा. तो इसलिए इसका रीज़न क्या होता है, लो सोल्यूबिलिटी. ठीक है. सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझाने की ट्राई करूंगा. ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा. आप ध्यान रखिएगा. व्हाट आर दी, मेरा पहला ही क्वेश्चन है आपसे, व्हाट आर दी ऑक्सो एसिड्स, व्हाट आर दी ऑक्सो एसिड्स, क्या होते हैं ऑक्सो एसिड्स. तो ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच एन ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम एटम. आप यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर देखो ये क्या H है. ठीक है ना, ये कैसे जुड़ा हुआ है, इस बी से जुड़ा हुआ O के थ्रू, और ये आपका ऑक्सो होता है. तो ये OH H जो है उस ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है जिससे ऑक्सो ग्रुप, और ये उस एटम से अटैच्ड है जिससे क्या अटैच्ड है, ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड है. समझ रहे बात को. तो इसको बोलते हैं, फिर से देख लेते हैं, दैट इज द ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटॉन, दिस इज द एसिडिक प्रोटॉन, इज ऑन ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, विथ एन ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम, ये जिस एटम से अटैच है उससे ऑक्सो ग्रुप भी अटैच्ड है. ठीक है ना, ऑक्सो ग्रुप क्या हो गया, ये ऑक्सो ग्रुप हो गया, ये वाला. सो दैट इज कॉल्ड द ऑक्सो एसिड्स. यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कार्बोनिक एसिड है, तो कार्बोनिक एसिड क्या होता है आप चेक करो. यहाँ पर कार्बोनिक एसिड को चेक करते हैं, ये आपका H2CO3. तो OH में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैच है जिस कार्बन से, उस कार्बन पे ऑक्सो ग्रुप भी अटैच है, सो दैट्स व्हाई इट इज द ऑक्सो एसिड्स. लाइक H2SO4, OH अटैच टू द S और इस पे ऑक्सो ग्रुप भी अटैच्ड है, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो ए ऑक्सो एसिड्स. सो दीज आर दी ऑक्सो एसिड्स. तो एग्जाम्पल है आपके पास कार्बोनिक एसिड, H2SO4 एंड एक्सेट्रा. So the alkali metals form salts with oxo acids. So याद रखना, alkali metals when react with oxo acids they form the salts because they are highly electropositive. So their M2CO3 यानी metal carbonate and bicarbonates, they are generally soluble in water and thermally stable. Thermally stable मतलब टेम्परेचर दोगे तो इतना जल्दी मेल्ट नहीं होंगे, उनको टाइम लगेगा. Generally soluble in water. Their carbonates and bicarbonates are highly stable on heat. Solubility of their carbonates and bicarbonates increases down the group. टॉप से बॉटम आओगे तो solubility increase होती है. लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू हीट. तो लिथियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो Li2O में और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत ही जल्दी. सो लिथियम बीइंग सो स्मॉल इन साइज, सो पोलराइजेशन इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू CO3 की कंपेरिजन में उसका साइज बहुत छोटा है. So CO3-2 ion leading to the formation of more stable Li2O and CO2. तो क्या करेगा, जैसे Li2CO3 है तो ये स्टेबल नहीं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोर स्टेबल Li2O एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो Li और CO3 साइज बिग है, इसको होल्ड करके नहीं रखेगा, नॉट स्टेबल. स्मॉल आयन कांट होल्ड बिग आयन. आपको आई थिंक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, मैंने बहुत अच्छे से इसको यहाँ मेंशन किया हुआ है एक चीज़ को, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर इसको पढ़ेंगे आप. Li2CO3 इज नॉट स्टेबल बिकॉज इट इज कोवेलेंट. और LiHCO3, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LiHCO3 तो स्टेबल है. तो एक मिनट, Li जो HCO3 है, सॉरी LiHCO3, एक सेकेंड, Li2CO3 इज नॉट सो स्टेबल. इसके पीछे रीजन क्या है, Li का साइज स्मॉल है, CO3 बिग है, सो दे आर नॉट स्टेबल, दे कांट होल्ड ईच अदर. और LiHCO3 नॉट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें बहुत माइंड में रखनी है आपको. ओके उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम. तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एनामोलस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम द अदर ग्रुप मेंबर्स, विथ द प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर ग्रुप मेंबर्स ऑफ लिथियम आर कॉल्ड एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम. कैसे, लिथियम इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, उसके बाद कौन आता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. So we say that, and we said that the all group members has similar properties, but there is some different things happens, that sodium, potassium, rubidium, cesium, francium have same properties, but lithium has some kind of properties which are not similar to this group members. These properties are called anomalous properties of lithium. और कोई भी ग्रुप होगा उसमें फर्स्ट मेंबर अदर मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा ही करेगा, एंड इसको हम हर टॉपिक में पढ़ना है, एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम. और नेक्स्ट जो ग्रुप होगा उसमें बेरिलियम फर्स्ट मेंबर है, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम. सो दीज हैज़ ऑल्सो दी एनामोलस प्रॉपर्टी. तो वी विल स्टडी इन ग्रुप 2 the anomalous properties of beryllium, and in group 1 we are studying the anomalous properties of lithium. तो lithium का
जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 3, एटॉमिक मास है 6.941। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है, एनोमलस प्रॉपर्टी। ऐसा क्या हो गया कि ये एनोमलस प्रॉपर्टी शो कर रहा है? तो फर्स्ट थिंग, स्मॉल साइज, लिथियम का साइज बहुत स्मॉल होता है। हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, जिसका साइज स्मॉल होगा उसमें पोलराइजिंग पावर हाई होगा, बिकॉज उसके पास जो न्यूक्लियस है उसका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत इफेक्ट रहता है। समझ रहे बात को? कैसे? सपोज आपके पास ये कोई बड़ा एटम है, इसका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस पे ये पोलराइजेशन इतना हाई इफेक्ट ही नहीं रहेगा, बिकॉज इसका ऑलरेडी साइज बहुत बिग है, तो ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया। लेकिन सपोज कोई छोटा सा एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर इसके पास इसको पोलराइज करने के लिए मोर पॉजिटिव चार्ज है, इवन इसके अंदर का डिस्टेंस कम है, सो दैट्स वाई डायरेक्ट इस पर पोलराइजेशन कर सकता है। सो हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, जिससे कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, ये ध्यान रखना, पोलराइजिंग पावर से क्या होंगे, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, और चार्ज अपॉन रेडियस जो रेशो रहेगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर को हम समझ सकते हैं, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पर हम देखेंगे हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज लिथियम का साइज बहुत स्मॉल हो गया, सो ऑन दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन द attraction force is very high, so that's why we have to remove an electron with very high energy, so it is high ionization enthalpy and low electropositive character. We know that when we move from top to bottom, positive charge, positive character increase होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी बढ़ती है, पर लिथियम तो स्मॉलेस्ट इन साइज में, अपर साइड में, तो छोटा सा तो है, इसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा सपोज, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसकी बहुत लेस रहेगी, सो दैट्स वाई वी कैन से लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कंपेयर टू अदर मेटल्स। सो डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, तो लिथियम अपर में है तो डिक्रीज होगी इसकी, सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इसके, ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम एनामोलस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। फर्स्ट थिंग, द LiOH वीक बेस, अदर एल्काइली मेटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस। चेक कर सकते हो LiOH एज कम्पेयर टू इसी का दूसरा मेंबर NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है बट ये वीक बेस होता है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन विद वाटर, तो M+H2 क्या बनाता है, MOH बनाता है। ठीक है, पर लिथियम क्या करता है, Li+H2 से रिएक्शन करके LiOH बनाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है बट ये वीक बेस होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। एयर से रिएक्शन करेंगे तो Na हो या पोटेशियम हो, दे विल फॉर्म दी पर ऑक्साइड बट इट फॉर्म दी मोनोऑक्साइड, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। लिथियम कैन ऑल्सो फॉर्म दी नाइट्राइड, ओनली लिथियम ही नाइट्राइड बनाता है। फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन करोगे तो जो MH बनता है वो अनस्टेबल होता है, बट लिथियम का जो हाइड्राइड है वो स्टेबल होता है। ओके, देखो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अदर मेंबर्स है उनका जो हाइड्राइड है वो अनस्टेबल है बट इसका स्टेबल है। ओके, हेलोजन के साथ में MX2, जो MX बनता है अदर एलिमेंट्स का, सपोज NaCl है, ठीक है ना, इट इज सोल्यूबल, बट LiF जो बनेगा वो क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा, बिकॉज लैटिस एंथैल्पी इज वेरी हाई ड्यू टू सिमिलर साइज, ये हो जाएगा इनसोल्यूबल। डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन Li इन अदर एल्काली मेटल्स, हमने पढ़ लिया पहले, LiOH वीक बेस होता है, Li इज द लीस्ट रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम प्लस एयर करोगे तो Li2 और Li3n बनेगा, है ना, नाइट्रोजन के साथ में, तो ये मोनोऑक्साइड बनाता है, नाइट्रेट बनाता है। अदर एल्काली मेटल्स डू नॉट फॉर्म द मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रेट्स, तो ऑलरेडी हम वही प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। लिथियम हाइड्राइड इज मोस्ट स्टेबल, अदर एल्काली मेटल के जो हाइड्राइड्स आर नॉट मच स्टेबल, और Li2CO3, LiF और Li3PO4 स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, बट करस्पॉन्डिंग अदर एल्काली मेटल्स जिनके फॉस्फेट और हैलाइड और कार्बोनेट आर सोल्यूबल इन वाटर। लिथियम इज हार्ड मेटल, आप सोडियम को चेक करो, सोडियम कितना हार्ड होता है, सोडियम alkali metal, it is very soft metal, potassium is very soft, you can cut with the knife also, but lithium is very hard। ठीक है, तो lithium hard metal, melting and boiling point higher to another alkali metals। LiCl deliquescent प्रॉपर्टी रखता है, मीन्स आपको पहले ही बताया था वाटर को होल्ड करने की प्रॉपर्टी, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड क्रिस्टलाइजेस, तो ये हम देख सकते हैं इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। NaCl के पास कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं रहेगा, but LiCl can hold can absorb two water molecule from the atmosphere, so we can say ये भी प्रॉपर्टी भी इसकी डिफरेंट है। अदर एल्काइली मेटल क्लोराइड्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स, बट ये हाइड्रेट्स बनाता है। नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम गेव NO2 एंड O2 गैस ऑन हीटिंग, तो LiNO3 को जब ये देखो स्टेबल ही नहीं था, पहले हमने पढ़ लिया, तो Li2O बनाएगा, NO2 बनाएगा, O2 बनाएगा, बट सपोज NaONO3 का चेक करो तो ये NO2 बनाता है और O2 बनाता है, मतलब ये नाइट्रेट बनाता है। ठीक है ना, और ये क्या बनाते हैं, नाइट्रेट्स, ये नाइट्रेट्स बनाते हैं, ये नाइट्रेट्स बनाते हैं, इजी। Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट स्टेबल नहीं, फिर से क्या बनाएगा, Li2 और CO2 बना देगा, तो Li2CO3 इज नॉट स्टेबल। अदर एल्काइली मेटल्स कार्बोनेट डू नॉट इवॉल्व CO2, वो CO2 को इवॉल्व ही नहीं करते और ये करता है, तो ये भी डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गई।
ठीक है। Na2CO3 हीट करोगे, कोई यहाँ पर X डज नॉट डिकम्पोज, मतलब X नहीं, ये मतलब क्रॉस कर दिया, मतलब रिएक्शन नहीं होगी, डिकम्पोज ही नहीं होगा। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो LiHCO3 है, नॉट ऑब्टेन इन सॉलिड फॉर्म, बट वेयर एज अदर एल्काइली मेटल्स और कार्बोनेट्स ऑब्टेन, सॉरी अदर एल्काइली हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इन सॉलिड फॉर्म आर प्रेजेंट। सपोज मैं बात करता हूँ NaCO3, इट प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, बट लिथियम की बात कर लो तो लिथियम का ये जो बाइकार्बोनेट है इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ नहीं, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। लिथियम विथ अमोनिया फॉर्म इमाइड, लिथियम अमोनिया क्या बना लेगा, Li2NH यानी इमाइड बना लेगा। अदर ग्रुप 1 मेटल्स फॉर्म एमाइड, वो क्या बनाएंगे, NH2 बनाएंगे। ठीक है, चेक कर सकते हो, सोडियम प्लस अमोनिया तो सोडामाइड बनता है। लिथियम डज नॉट फॉर्म एसिटेलाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइन। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आप देख सकते हो, इथाइन से रिएक्शन कराओगे तो एसिटिलाइड नहीं बनाता है, अदर वाले बनाते हैं। सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, अब देखो लिथियम खुद के ग्रुप से तो क्या कर रहा है, डिसिमिलरिटी रख रहा है, बट इधर का जो मेंबर है मैग्नीशियम 2 ग्रुप का, उससे सिमिलरिटी रखता है। क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, इसको बोलते हैं डाइगोनल रिलेशनशिप, बिकॉज Li यहाँ है, यहाँ पर Be है, देन हियर दी Mg, सो ये हो गया डाइगोनल रिलेशनशिप। ठीक है। एटॉमिक रेडियस, लिथियम का 152, मैग्नीशियम का 160, ऑलमोस्ट सिमिलर। आयनिक रेडियस, लिथियम प्लस 76, मैग्नीशियम 72, ऑलमोस्ट सिमिलर। पोलराइजिंग पावर 1.7 3.9, ठीक है, ये भी अच्छी खासी, 2 और 3.9। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज की 1, Mg की 1.20, तो इसके पीछे कुछ रीज़न है। सिमिलरिटी इन आयनिक रेडियस, जिस ये रीज़न है। दूसरा सिमिलरिटी इन चार्ज बाई रेडियस रेशियो, ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन Li एंड Mg, देखो LiOH वीक बेस है, MgOH2 वीक बेस है। Li नाइट्रेट बनाता है, नाइट्रोजन के साथ Li3N, ये भी बनाता है Mg3N2। Li इज हार्ड, इवन Mg इज हार्ड। LiCl deliquescent means it can absorb the water molecule, MgCl2 is also deliquescent। Li2CO3 decompose होता है, MgCO3 also decompose। LiHCO3 cannot be obtained in solid form, तो MgHCO3 twice cannot be obtained in solid form। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो अल्टीमेटली मैं कहूँ तो Li खुद के मेंबर से क्या करेगा, एनामोलस प्रॉपर्टी शो करेगा, यहाँ से सिमिलर नहीं है, बट Mg के साथ में ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। इट इज़ कॉल्ड डाइगोनल रिलेशनशिप एंड इट इज़ कॉल्ड एनामोलस प्रॉपर्टीज। और आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी सारी प्रॉपर्टीज़ और सब कुछ, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंपोज करके और उसको एक्सप्लेन किया है। सो आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और कुछ भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, एंड इट विल बी इंक्रीज योर नॉलेज about the chemistry and interest about the chemistry. Okay, so all the best for your study, and good luck to all of you.